नमस्कार। हमारी ओपन कॉन्वर्सेशन की न्यू सीरीज सॉन्ग ऑफ द माउंटेन्स में आज का हमारा विषय है व्हाट इज फिलॉसफी। सॉन्ग ऑफ द माउंटेन्स एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम फिलॉसफी या तत्व ज्ञान पर फोकस करेंगे। साइको एनालिसिस और हिंदू फिलॉसफी के स्टैंड पॉइंट से भी फिलॉसफी के साथ चर्चा में रहेंगे। आज हमारे साथ हमारी यात्रा में हमारे सब्जेक्ट गाइड, हमारे सब्जेक्ट विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु वैद्य आज हमारे को ज्वाइन किया है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, फिलॉसफी वर्ड हम आजकल इतना आम यूज करते हैं लाइफ से रिलेटेड बातों में, इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में फिलॉसफिकल चर्चाएं होते हैं। तो ये फिलॉसफी क्या है, और इसी फंडामेंटल बात से शुरू करें कि फिलॉसफी एक्चुअली डिफाइन क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? It's one of the most difficult things to define क्योंकि the word philosophy has become like the word love or socialism. It means everything to everybody and nobody knows what it means because it has been used in such different ways to mean different things. But coming to the bare basics, we start the with the basic fact of man and his condition on earth. That man finds himself in this world in a given situation. And the given situation is that he has a body and a mind. He has a desire for survival and pleasure. He has desire for knowledge. He has other desires also. At the same time, there is a world outside which can be known and worked upon if need be manipulated for these purposes. So there is a mind inside that can know, and there is a reality outside that can be known. ये एक fundamental situation है in which man finds himself. Now, in order to satisfy his desires of survival, pleasure, knowledge, love, power, all his desires, creativity, arts, spirituality, he uses this apparatus of the mind, and that creates knowledge. Now you can have knowledge for these purposes, or you can have knowledge for the which is the desire for knowledge per se. When we go into this, for first definition of philosophy comes in, that one way to define philosophy is that in our journey of knowledge, we start with philosophy and we end with exaction. This is one way of looking at philosophy, that when man wants to know something, he starts off by philosophizing. So if he wants to know, let us say, if we talk about medicine today, it started off by reflecting just on other living organisms, how they grow, plants, how they grow, human beings, how they respond. And initially people started philosophizing that water is life because after the rains, the grass grows. So water must be bringing life. Or that fire kills life, that if you roast something, it dies. So this was the rudimentary, crude way of beginning of knowledge. And similar reflections were made not only about ordinary things, but about things like truth, beauty, God, purpose of life, origin of universe. And this gave us some knowledge which was very distinct from the scientific knowledge. And this is what was termed philosophy. So we started, let us say, with this crude biology, philosophy, in the philosophical form. Then from philosophy, as we get more knowledge, we go to the stage of art. That we know certain things about certain things, but we don't know much about it. It is by and large individual, intuitive, gifted.
It is not something that can be easily passed from one to the other. And then from art, we move to craft as it becomes more known to us and it becomes more scientifically known. From craft, we move to inexact science. And from inexact science, we move to exact science. And when we have a complete grip, we give this knowledge to machines and robots, and then they do it for us, which is what has happened in some areas of manufacturing. Say manufacturing of cars, many of the operations are done by robots because it is so well known that we can put that into a standard operating procedure and algorithm and pass it on to the machines, the knowledge to do something. So from philosophy to robotics is this whole journey. And therefore, one way to define philosophy is it is the beginning of knowledge in its very initial, nascent, crude form. And it is one end of this knowledge spectrum as knowledge moves regarding anything from philosophy to exact science and then to robotics, with art, craft, and inexact science being in between. That is one definition of philosophy. Second definition is philosophy deals with those subjects that science cannot deal with. तो फिलोसॉफी उन सब्जेक्ट से डील करता है जहां पे साइंस डील नहीं कर पाता. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये पूछे हाउ डज द माइंड वर्क, तो हम उसमें साइको एनालिसिस के अंदर कोई जवाब देंगे उसका. बट अगर हम ये पूछे व्हाई शुड द माइंड एग्जिस्ट एट ऑल, तो इस क्वेश्चन का साइंस के बाउंड्री के अंदर कोई न तो जवाब है न इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया जा सकता है. कौन से लेबोरेटरी में, कौन से सर्वे में, कौन से क्लिनिकल सेटिंग में आप इसको चेक करोगे. तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसके बारे में ह्यूमन माइंड क्वेश्चन तो क्रिएट कर सकता है, लेकिन आंसर ढूंढने के लिए एक ही कैनवास है और वो है यू कैन प्रूव और डिसप्रूव इन द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स. शब्दों की दुनिया में ही इनको प्रूव या डिसप्रूव किया जा सकता है. ना तो इनको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जा सकता है, ना इनको कोई सोशल साइंस के सर्वे में किया जा सकता है, ना कोई स्टडी में किया जा सकता है. तो ये शब्दों की दुनिया के अंदर ही इनको प्रूव या डिसप्रूव किया जा सकता है. तो ये वो सब्जेक्ट्स है जिससे साइंस आज डील नहीं कर सकता है. तो ये डेफिनेशन दूसरी है फिलोसॉफी की कि पूरे नॉलेज के एरिया को आप दो में डिवाइड कर दीजिए, वो जिसको साइंस डील कर सकता है और वो जिसको साइंस डील नहीं कर सकता है उसको फिलोसॉफी में रख दिया जाता है. तो एक सेकंड डेफिनेशन, एक अलग तरीका है तत्व ज्ञान को देखने का. तीसरा तरीका है कि हम इसको साइंस के फाउंडेशन में माने कि कोई भी एरिया की साइंस के फाउंडेशन में फिलोसॉफी है. जैसे कि एक सेल है बायोलॉजी में, वो सेल जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखता है जो कि हार्मफुल हो, उसके सामने डिफेंस की प्रोसेस शुरू कर देता है. तो अगर आप पूछे ऐसा क्यों है तो आप कहोगे देयर इज अ विल टू सर्वाइव इन द सेल. अब यहां तक तो ठीक है, अब हमने कहा ये विल कहां से आया और क्यों आया, तो ये साइंस से बाहर चला जाता है. यू गेट इनटू द फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी. और हम ये पूछें कि फिजिक्स के अंदर के माइक्रो फॉर्म में क्वांटम मैकेनिक्स है और मैक्रो फॉर्म में हमको क्लासिकल फिजिक्स दिखाई देता है, ऐसा ही क्यों है. या हम ये पूछे कि बिग बैंग हुआ ही क्यों, या इवोल्यूशन हुआ ही क्यों. तो जो भी साइंस का लॉ है उस पे जब हम वाई लगा देते हैं कि आपने साइंस के फंडामेंटल्स लॉ पे आ गए, आपने एक फिनोमिना को एनालाइज करना शुरू किया, वाई लगाते लगाते आप एक फंडामेंटल लॉ पे आ गए और आपने कहा कि ये चार लॉ की वजह से सब कुछ आगे का हुआ. अब आप उन चार लॉस पे वाई लगा दो तो आप सीधे साइंस से बाहर जाके फिलोसॉफी में आ जाते. फिर ये तीसरा तरीका है देखने. चौथा तरीका है कि ये एक मेटा साइंस है कि जैसे
ये एक सीईओ है और सारे साइंसेस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, कि वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट एचआर, और ये सीईओ ऊपर बैठ के सबको सिंथेसाइज कर रहा है, सबके आउटपुट्स। सो ये अलग तरीका है कि फिलोसॉफी इज बेसिकली a wise coordinator of all that science generates, and it organizes all the uh, disparate, isolated findings of science into a wise, organized whole to create a good life for human beings. और लोग कहते हैं कि हमारी क्राइसिस ये है हमारे एज की कि देयर इज टू मच ऑफ साइंस एंड टू लिटिल फिलोसॉफी, कि साइंस इतना सारा इकट्ठा कर लिया है कि उसको एक ऑर्गेनाइज होलिस्टिक होल में आप ऑर्गेनाइज कर सको, ऐसी फिलोसॉफिकल कैपेबिलिटी नहीं है लोगों में। सो वी हैव वेरी गुड साइंटिस्ट बट नॉट good enough philosophers to coordinate everything. In that sense, philosophy becomes a meta science, the science which organizes findings of all other sciences. एक और तरीका है देखने का कि philosophy is one more science. It is just dealing with different subjects. It is dealing with those subjects which cannot be dealt with in laboratory or in a social science approach. तो ये एक तरीका है कि philosophy itself is a science. It is just dealing with different subjects. ये एक और डेफिनेशन है philosophy की। और ये सारी जो डेफिनेशन हमने देखी, ये एक वेस्टर्न ट्रेडिशन की डेफिनेशंस है। ईस्टर्न ट्रेडिशन में फिलोसॉफी की जो हिस्ट्री है और फिलोसॉफी को जो अप्रोच है और उसका जेनेसिस है और उसका यूज है, वो काफी अलग है। और वेस्टर्न ट्रेडिशन में ये सारी डेफिनेशंस हैं फिलोसॉफी। तो जैसे कि अस्तित्व का दर्शन करना, जैसे दर्शन शास्त्र अगर देखा जाए तो इट इज अ वेरी राइट वर्ड। तो जहां हम ईस्टर्न वर्ल्ड की आप बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ईस्टर्न ट्रेडिशन में फिलोसफी की अंडरस्टैंडिंग है वहां से सबको पहले अपने दर्शन जनों को रीच आउट करें कि ईस्टर्न वर्ल्ड में क्या है फिलोसफी का मीनिंग। ईस्टर्न वर्ल्ड में काफी अलग है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में उनकी फिलोसॉफी की हिस्ट्री इस तरह से है, इनफैक्ट उनकी नॉलेज की हिस्ट्री इस तरह से है कि आप काफी इजीली फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और थियोलॉजी को अलग कर सकते हैं। और अगर पीछे चले जाओ तो शायद साइकोलॉजी अलग ना हो बहुत पुराने काल में, लेकिन थियोलॉजी और फिलोसॉफी तो फिर भी काफी इजीली अलग किए जा सकते हैं। पूरे क्रिश्चियन जो इरा है वेस्ट का, जो कि काफी लंबा इरा है उनकी हिस्ट्री में, वहां पे बहुत ही क्लियरली आप थियोलॉजी को और फिलोसॉफी को अलग कर सकते हैं, जबकि ईस्ट में उसका डेवलपमेंट बिल्कुल अलग है। ईस्ट में जो उसका डेवलपमेंट है वो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बिल्कुल वैसे अलग। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ईस्ट में फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी, थियोलॉजी और साइकोलॉजी, इन चारों को अलग करना मुश्किल है। ये एक सिंथेटिक पैकेज है, जैसे कि एक ही पैकेज में सब कुछ रख दिया गया है, जिसको हमारे यहाँ पे नाम दिया गया है दर्शन। कि अगर आप जैन दर्शन देखें तो जैन दर्शन के अंदर उनकी अपनी स्पिरिचुअल प्रोसेस है कि कैसे मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी अपनी साइकोलॉजी है कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शनल तरीके क्या है। उनकी अपनी फिलॉसफी है कि यूनिवर्स कैसे आता है एग्जिस्टेंस में, या हमेशा से रहता है, और फंडामेंटल कौन से लॉस काम कर रहे हैं और कैसे ये चक्र चल रहा है। तो अपनी फिलॉसफी उनकी अपनी ही कॉस्मोलॉजी है कि यूनिवर्स फ्लैट है या गोल है, एक्सपांडिंग है या स्टैटिक है, इसमें एक ही तरह के जोन्स हैं या अलग अलग लोक हैं। तो उनकी अपनी एक कॉस्मोलॉजी भी है। तो ये एक दर्शन का पूरा पैकेज होता है कि उसी दर्शन के अंदर आपको स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और कॉस्मोलॉजी, इवन आपको आयुर्वेदिक साइंस का भी एप्लीकेशन मिल जाएगा कि इस दर्शन के हिसाब से जो चलता है
उसको क्या खाना खाना चाहिए। तो ये एक पूरा एक पैकेज बन जाता है कि जैन दर्शन है, वैसे ही बुद्ध दर्शन है, उसकी भी अपनी फिलोसॉफी है, अपना स्पिरिचुअल प्रोसेस है, अपनी एक कॉस्मोलॉजी है, अपनी एक एपिस्टेमोलॉजी है, अपनी एक इवन एटॉमिक साइंस भी है अपना, कि एट द बॉटम ऑफ एवरीथिंग व्हाट आर द एलिमेंटल पार्टिकल्स दैट कंस्टिट्यूट द होल ऑफ फिजिकल रियलिटी। तो वो साइंस भी है उस पैकेज के अंदर। जैसे इफ यू गो टू जैन दर्शन दे विल टॉक अबाउट पुडगल, कि these are very elemental constituents of reality। वैसे ही आप बुद्ध दर्शन में जाओगे तो उनका एक अलग होगा कि एलिमेंटल क्या है। जैसे साइंस में आज हम कहते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उसके भी नीचे अगर बिलीव करो तो स्ट्रिंग्स, ये सबसे एलिमेंटल ये है साइंस के हिसाब से, आज की दृष्टि से। 10 साल बाद क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन आज के हिसाब से ये है। तो वैसे उनके भी अपने स्पेक्यूलेशंस हैं कि एटॉमिक्स एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी। तो ये पूरा का पूरा एक दर्शन है। तो ये हमारे यहाँ पे क्योंकि प्लुरलिज्म है, तो हमेशा ही बहुत सारे दर्शन एक साथ रहते हैं, और इंडिविजुअल के ऊपर होता है कि वो कौन से पैकेज को चूज करता है, वो किसको कंपैटिबल फाइंड करता है अपने अपनी यात्रा के साथ। तो ये पहला फर्क है कि वेस्ट में आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। दूसरा, हमारा जो पूरा दर्शन शास्त्र है, जो तत्व ज्ञान है, जिसको हम पूरा क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र ही कहना चाहिए, एक अच्छा शब्द है ये, या दर्शन जगत कह ले, कि जैसे बहुत सारे दर्शन है। तो हमारा जो यहाँ पे दर्शन जगत है, उसमें एक कोर एलिमेंट है जो वेस्ट में नहीं है, और वो है एनलाइटनमेंट। जी। कि एक स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें थॉट नहीं है, फीलिंग नहीं है, हाई अवेयरनेस है, ब्लिस है। और ये एक रेयर स्टेट है। ये एक ऑर्डिनरी आदमी हर रोज इस चीज को कोई महसूस नहीं करता है, इसको मतलब एक्सपीरियंस नहीं करता है। और ये स्टेट कोई आदमी विल नहीं कर सकता है, और अगर कभी आ भी जाए तो उसको सस्टेन नहीं कर सकता है। सो जो एनलाइटनमेंट का स्टेट है कि यू शुड बी एबल टू एंटर इनटू दिस स्टेट ऑफ नो थॉट, नो फीलिंग, हाई अवेयरनेस एंड ब्लिस ऑन डिमांड एंड सस्टेन इट ऑन डिमांड, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारा गोल स्टेट है। और सब कुछ इस स्टेट को रीच करने के लिए, और इस स्टेट को रीच करके ही जो जन्मों का जो चक्र है उससे हम मुक्त हो पाएंगे। लेकिन इस स्टेट में तब तक हम जा नहीं सकते जब तक कि हमारी डिजायर्स और फियर्स के ऊपर एक फंडामेंटल सिग्निफिकेंट वर्क न कर दिया हो। सो अनलेस डिजायर फियर का एरिया सब्सटेंशियली क्लियर न कर दिया हो, यू कांट गो इनटू दिस स्टेट एंड सस्टेन दिस स्टेट। अब अलग अलग दर्शन में ये भी है कि सिर्फ यही गोल स्टेट नहीं है, कुछ लोग कहेंगे इसके आगे भी दूसरे गोल स्टेट्स, कुछ लोग कहेंगे कि इस गोल स्टेट में से एक चीज निकाल दो और दूसरी एक चीज डाल दो तो सही गोल स्टेट बनेगा। इस तरह के सारे प्लूरलिस्टिक कंसेप्चुअलाइजेशन है, लेकिन फंडामेंटली ये एक गोल स्टेट है जिसके चारों तरफ सारे दर्शन के पैकेजेस घूम रहे हैं, खाली चारवाक को छोड़ के। चारवाकी ऐसे ऋषि है जो प्योर मटेरियलिज्म, प्योर एग्नोस्टिसिज्म की तरफ है, और एनलाइटनमेंट को एक गोल स्टेट नहीं मानते। और अगर मानते भी होंगे तो शायद वो टेक्स्ट हमारे पास है नहीं। लेकिन जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो ये है कि वो एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज बाय एंड लार्ज द गोल स्टेट इज द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट। और अगर आप सबके एनलाइटनमेंट की डेफिनेशन देखो सभी दर्शनों की, यू विल हैव 75% ओवरलैप। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सब कुछ इसी की तरफ डायरेक्टेड है। और इस स्टेट में जाने के बाद जो रियलाइजेशन हुए, या इस स्टेट में रहे और फिर नॉर्मल स्टेट में आए और फिर रिफ्लेक्ट किया, और जो रियलाइजेशन हुए, वो
हमारी फिलोसॉफी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो हमारी जो पूरा जो तत्वज्ञान है दर्शनों के अंदर, वो उन लोगों ने रचना की है जो एनलाइटनमेंट की स्टेट को डीपली एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और इसलिए उनको समझने के लिए या तो आपको एनलाइटन होना पड़ेगा या एटलीस्ट माइक्रो फॉर्म में उसको समझना पड़ेगा। कि माइक्रो फॉर्म में आपने एक्सपीरियंस किया है तो भी आप समझ सकते हो एटलीस्ट काफी चीजें जो वो कह रहे हैं। अब क्योंकि सब कुछ इस रेयर स्टेट पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमारे दर्शन को इंटेलेक्चुअली समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। जैसे एक स्टेटमेंट ले लीजिए, he who does not know is in ignorance, he who knows is in greater ignorance। अब लॉजिक True. सेंस नहीं मेक करता है कुछ भी, बिकॉज इफ यू नो मोर यू आर लेस इन इग्नोरेंस, हाउ कैन यू बी मोर इन इग्नोरेंस। सो ऑब्वियसली लॉजिकली ये मीन नहीं करता है, पर अगर आप एनलाइटनमेंट की जर्नी को देखो तो ये सही कि जिसके अंदर नॉलेज है और सॉलिडिफाई हो गया है और वो उसके ट्रैप में आ गया है, उसके बिलीफ के साथ आइडेंटिफाई हो गया है, अब उसको छोड़ नहीं पा रहा है, तो वो नो थॉट के स्टेट में जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इसी में वो सोचता रह रहा है जिस जो उसके अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कि जिसको कुछ नहीं पता है उसके अंदर तो मिनिमम अमाउंट ऑफ थॉट्स है, क्योंकि वो इग्नोरेंट है। लेकिन जिसको कुछ पता है उसके तो ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, उसके लिए दो थॉट में जाना और भी मुश्किल है। सो फिर वो सेंस करता है कि ही हु नोज इज इग्नोर, ही हु डज नॉट नो इज इग्नोरेंट, ही हु नोज इज मोर इग्नोरेंट। अब अगर आप एनलाइटनमेंट को रास्ते से हटा दो बीच में से, दिस स्टेटमेंट विल नॉट मेक एनी सेंस। एंड मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द दर्शंस इंक्लूडिंग द उपनिषद्स विल बी ऑफ दिस फ्लेवर। सो ये एक बहुत बड़ा फर्क है ईस्ट और वेस्ट में, कि ये इस फैक्ट की वजह से हमारे जो दर्शनों का कंटेंट है और जो समझने का तरीका है वो काफी अलग है। थर्ड इज दिस होल fact of mystical science and intuition, the use of both of them, the deployment of intuition and the explorations into mystical science, ये ईस्टर्न दर्शनों में रैम्पेंट है, मतलब इस परवेज, जो वेस्ट में आपको नहीं मिलेगा। वेस्ट की फिलोसॉफी लार्जली एक चेयर टेबल इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफी, it is not so much into the experience of any rare state. Then we have the age of philosophy। हमारे यहाँ पे जो दर्शन हमने देखे हैं वो हजारों साल पुराने हैं। कंपेयर टू दैट द वेस्टर्न फिलोसॉफी इज क्वाइट रिसेंट। स्पेशली अगर आप स्कॉलिस्टिक फिलोसॉफी देखो रेनेसां की बात, या लिंग्विस्टिक फिलोसॉफी देखो लास्ट सेंचुरी की, तो बहुत ही रिसेंट है। कंपेयर टू दैट दिस आर वेरी वेरी एज ओल्ड थिंग्स। Right. उसके बाद है प्लूरलिज्म। एक बहुत बड़ा फर्क है दोनों में कि essentially the west is based upon and the east is based upon pluralism। so ये एक कुछ डिफरेंसेस हैं द वे फिलोसॉफी इज अंडरस्टूड हेयर, कि यहाँ पे स्टैंड अलोन फिलोसोफर्स आपको बहुत कम मिलेंगे ईस्ट। आपको मिलेंगे वो लोग जो इसी तरह से योगी हैं या एनलाइटनमेंट के तलाश में हैं, और ऑन द रोड वो फिलोसॉफी जनरेट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या उस पर कमेंट कर रहे हैं, या एनलाइटनमेंट प्राप्त कर चुके हैं और फिर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं रियलिटी के ऊपर और फिलोसॉफी जनरेट कर, जो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द वेस्टर्न, कि जहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल टेबल पे बैठा है, या ग्रीस में सुकरात या अफलातून या एरिस्टोटल, ये लोग बैठे हुए हैं एकेडमी में। या रिसेंट में अगर आप देखो तो अ, या रिसेंटली अगर आप विटजेनस्टाइन को देखो या बर्ट्रैंड रजल को देखो, या
डेविड सीयर्स को देखो, ये सब मतलब बिल्कुल दे वर एम्प्लॉयड एज प्रोफेसर्स, एंड इट वाज एन ऑन कैंपस, ऑफ कोर्स विटजेनस्टाइन का ऑफ कैंपस क्रिएशन था पहला वाला ट्रैक्टेटस, बट others created largely on campus, or at least they were in employment of some university or were associated with some university, which is very different from the rishis or the munis who were in the thick of everyday life. और that is true even for China for that matter. जैसे अगर आप Confucius को देखो तो he was in the thick of everyday life. So ये भी कुछ differences है between the understanding of the word philosophy, the genesis, the context of the people who do it, and what is covered, the flavor of. So can we say that कि अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो वहाँ बहुत ज्यादा तर्कवाद के साथ लॉजिकल सेटिंग के साथ आता है, whereas ईस्टर्न इज मोर इंट्यूटिव, Yeah, true. More experiential, more intuitive. मोर एक्सपीरियंशियल। जहाँ कि हम ईस्टर्न पार्ट को देख रहे हैं कि वहाँ पे इंट्यूटिव है, मिस्टिकल जर्नीज हैं लोगों की अपनी अपनी, और एक सत्य की खोज है, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग टू रिवील द ट्रूथ। तो इतने सारे जो आपने डिफरेंट फ्लेवर्स एक्सप्लेन किए ईस्टर्न में, अगर हम वेस्टर्न क्लासिकल वेस्टर्न फिलोसफी को देखें तो वो क्या क्या कवर करता है? जैसे कि हमने देखा डेफिनेशंस बहुत सारी हैं और बहुत सारी चीजें कवर की जा सकती हैं, बट जो सेंट्रल एकेडमिक क्लासिकल कंसेप्चुअलाइजेशन है वो ये है कि फिलोसफी के चार हिस्से कर दिए जाते हैं। पहला है मेटाफिजिक्स, कि फिजिक्स के ऊपर की जो रियलिटी को हम साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर क्या है। जैसे कि हमने ओरिजिन का क्वेश्चन कर लिया या पर्पस का क्वेश्चन कर लिया कि essentially let us say if we say कि what is the essence of matter or what is the purpose of all matter, why should matter exist in the first place, what is the purpose, yeah, what is the origin of matter। तो हम इस तरह के जब क्वेश्चंस कर ले बियॉन्ड साइंस तो हम मेटाफिजिक्स के एरिया में चलेंगे। तो एक बहुत बड़ा एरिया है मेटाफिजिक्स। दूसरा एरिया है एथिक्स, द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मोरालिटी ऑफ कॉन्शियंस। फिर इसमें अलग अलग हो जाता है कि इंडिविजुअल एथिक्स, किंग के एथिक्स, चर्च के एथिक्स, हर कंटेक्स्ट में एथिक्स, बिजनेस वालों के एथिक्स। तो हर कंटेक्स्ट में एथिक्स कैसे अप्लाई हो और क्या सही है क्या नहीं है, तो इस तरह से वो एक एथिक्स आ जाता है। फिर एपिस्टेमोलॉजी, द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, कि हाउ डू वी नो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग, व्हाट इज द लिमिट ऑफ नॉलेज, व्हाट कैन बी नोन, व्हाट कैन नॉट बी नोन। तो ये एक एपिस्टेमोलॉजी है। और चौथा है पॉलिटिक्स, हाउ टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी इन एन ऑप्टिमम वे, द साइंस ऑफ कलेक्टिविटी। सो ये बेसिक चार उनके रहते हैं, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, पॉलिटिक्स। फिर इसके अंदर सब डिविजन्स हो जाते हैं कि आपने मेटाफिजिक्स में आपने एक ओरिजिन के क्वेश्चन को पकड़ के एक्सपांड कर दिया तो उसको आपने ऑन्टोलॉजी कह दिया। आपने एक पर्पस के एलिमेंट को पकड़ के उसको एक्सपांड कर दिया, उसको आपने टीलियोलॉजी कह दिया। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो। तो क्लासिकली इस तरह से चल रहा था। इसके अलावा हर सब्जेक्ट की ये एक तरीका है देखने का वेस्टर्न फिलोसफी, कि क्लासिकली ये चार डिवीजन माना जाते थे और फिर इनके सब डिविजन्स हुआ करते थे, और फिर सब डिविजन्स अपने आप में खुद एक इंडिपेंडेंट बन गए जब काफी डेवलप हो गए। तो ये क्लासिकल एक स्ट्रक्चर है। इसके बाद दूसरी तरह से देखा जाए तो ये कि हर सब्जेक्ट की अपनी फिलोसॉफी होती है, कि देयर इज अ फिलोसॉफी ऑफ फिजिक्स, फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी, फिलोसॉफी ऑफ इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट, फिलोसॉफी ऑफ आर्ट। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर एक के डेप्थ में अगर आप चले जाओ तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे जिनको आप साइंस के दायरे में एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सो in any area when you go too deep you will end up into philosophy related to that area।
जैसे you have philosophy of psychoanalysis, philosophy of management, philosophy of art. तो हर एक सब्जेक्ट के साथ एक उसके डेप्थ में एक फिलोसॉफी जुड़ी हुई है. दैट इज सेकंड वे ऑफ लुकिंग एट इट. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फिलोसॉफी इज कि इट इज नॉट ओनली कि ये खाली फिलोसोफर्स की बुक्स में कैद है या एक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में जहां पे कोई नहीं जाना चाहता. ये इस तरह की बात नहीं है. एक्चुअली इफ यू लुक एट पॉलिटिकल मूवमेंट्स दे ऑलवेज नीड अ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन. कोई भी बड़ी हिस्टोरिकल चेंज कोई ना कोई फिलोसॉफी पर ही बेस्ड है. अगर आप 20th सेंचुरी को देखो तो द होल फाइट, द कोल्ड वॉर वाज एसेंशियली philosophical struggle of communism versus capitalism. True. And उसके बाद आप देखो तो नाजिज्म था, और नाजिज्म itself was based on some philosophical concepts, and they tried to twist Nietzsche and his philosophy to suit their purposes, but everyone has to find some grounding. कि अल्टीमेटली जो भी हम करना चाहते हैं, एक्शन के पीछे थॉट है और थॉट के नीचे एक फाउंडेशन चाहिए. तो फाउंडेशन हमेशा फाइनली फिलोसॉफी का ही होगा और वो एक्सियोमेटिक होगा. मतलब कि वहां पे बिलीफ आएगी. यू कैन नॉट पुट अ वाई अगेन बिकॉज इट्स अ बिलीफ. आप सारे जगह पे आ गए हो, जब आगे वाई का कोई जवाब नहीं, यू जस्ट हैव टू बिलीव और नॉट बिलीव. तो विटजेनस्टाइन इसके बारे में बहुत अच्छा कहते हैं. वो कहते हैं द जस्टिफिकेशन ऑफ द मोस्ट जस्टिफाइड स्टैंड्स इटसेल्फ अनजस्टिफाइड. ये सबका जस्टिफिकेशन फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है जो अपने आप में स्टैंड करता है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन. So he's, I think, said something very profound on the structure of knowledge. The justification of the most justified stands itself unjustified. In the ultimate analysis, human knowledge का कोई sure foundation नहीं हो सकता है. वो finally belief ही होगी या कोई intuitive experience ही होगा. Maybe in future we are able to change ourselves, and with that fundamental change of our constitution, maybe it changes. But as it is, the role of history and the role of what we are, this seems to be the, in a way, limit of our certitude. और इसके अलावा दो और चीजें हैं कि इवन इंडिविजुअल लेवल पे जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो फिलोसॉफी अंदर इन्वॉल्व होती है, हमको पता नहीं होता है. जैसे आपने किसी को कहा कि यू हैव दिस प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू यूज प्राणिक हीलिंग. एक आदमी कहता है हाँ हाँ ठीक है, लेट अस गो फॉर प्राणिक हीलिंग. दूसरा कहता है नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ होता नहीं. So the one who goes is actually not a materialist. He is open to idealism. He is open to psychicism. He is open to mysticism. जो ना कहता है, he is a very firm materialist. ऐसा सब कुछ है ही नहीं. So even every day maybe our conversations, our decisions, philosophy is always involved, just that we don't know about it. And if you look at two important philosophers who are very different from the rest, you can see Confucius and Charvak. Confucius in China, who is very simple and is just dealing with the morals and the state and people and their public and social behavior. He is just more concerned about the everyday use of philosophy. Very different from the rest. And if you look at Charvaka, he is a rare exception in the East who is a materialist agnostic and very different from others who put enlightenment at the center. That is to do with the different philosophers. When we come to psychoanalysis, how it is different from philosophy itself. Yeah, they are related. How are they related, if at all? They are, most of the psychoanalytic thinkers had studied
philosophy some way or the other. I am referring to the system creators, Freud, Jung type के, the real system creators. उनके बाद तो साइको एनालिसिस में से बहुत कम लोग आए जो सिस्टम क्रिएटर्स। बाद में जो लोग आए वो प्रोसेस क्रिएटर्स थे, प्रोसेस एनालाइज करने वाले, प्रोसेस डिस्कवर करने वाले, बट सिस्टम क्रिएटर्स बहुत कम। तो अगर आप देखो तो शोपेनहुअर के अंदर फिलोसॉफी में द कंसेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस इज मच बिफोर फ्रॉइड। शोपेनहुअर कहते हैं पीपल फील दे आर ड्रॉन फ्रॉम इन फ्रंट बट इन फैक्ट दे आर पुश्ड फ्रॉम बिहाइंड। सो उनका जो विल है शोपेनहुअर का, दैट इज अनकॉन्शियस विल. So the concept of unconscious and the concept of unconscious will, meaning unconscious with an intention, not a tabula rasa. That is there with Schopenhauer much before Freud and Jung. Freud जब लिखते हैं तो जब सुपर ईगो की बात आती है तो he uses Kant's concepts of categorical imperative. Adler जब बात करते हैं the will to power as being the core human motivation, तो he takes from Nietzsche. Nietzsche said a will to power, a will to absolute power, a will to, a will to power, a will to overpower, a will to an endless power. जब प्लेटो के प्लेटोनिक कंसेप्ट की बात आती है तो यूंग का आर्क टाइप का जो कंसेप्ट है वो फिलोसॉफिकली वहीं पे है। और ईस्ट के अंदर अगर हम देखें तो तंत्र का जो फिलोसॉफी है उसमें जो अनकॉन्शियस का जो कंसेप्ट है और जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और उसके ऑपरेशन का जो कंसेप्ट है वो भी साइको एनालिसिस से पैरेलल में है, उससे बहुत बड़ी सिस्टम है वो, बट कुछ अनकॉन्शियस प्रोसेसेस जो है वो यू कैन सी द पैरेलल्स। और अद्वैत के जो रियलाइजेशंस है वो ओशियानिक कंसेप्ट के साथ मिलते जुलते हैं और दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे से गेन कर सकते हैं। अगर हम देखें